اپنے بے خبر مجرم کے ذہن کو اچھی طرح ٹٹولنے کے بعد وہاں سے نکلے تو میرے ذہن میں شنکر کے مستقبل کے بارے میں ایک بڑا سوالیہ نشان جاگزیں ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اول خان نے گویا میرا ذہن پڑھ کر سوال کیا۔ اسے رہا کرنے میں اندیشہ ہے کہ اس کے سرپرست اس بار تمہارے خلاف سے زیادہ سرگرم ہو جائیں گے۔ تمہاری آواز پہچان کر اس نے اپنی تقدیر پر خود ہی ایک مہر سی لگا دی ہے۔ اول خان تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ویسے بھی اس کی حالت ابتر ہے، معذوروں کے بعد وہ بری طرح زخمی بھی ہو چکا ہے۔ تمہارے فلیٹ کا طواف کرنے والوں کے بارے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بتا سکا۔ اسے قید میں رکھ کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اول خان کے آخری سوال پر میں حیران رہ گیا۔ کیا تم اسے رہا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ اول خان مسکرا دیا۔ اسے قید حیات سمیت ہر قید سے نجات مل جانی چاہیے۔ تمہارے اندیشے سے واقف ہونے کے بعد میں ایسی احمقانہ بات سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ خبرلی وہاں رکنا بے سود تھا۔ اول خان نے قیدی سے گلو خلاصی کے بارے میں اپنے ایک آدمی کو محض چند فکروں میں بریف کیا اور ہم وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کے گھٹنے نہ توڑے ہوتے تو ہمارا کام اتنا آسان ثابت نہ ہوتا۔ میں راستے میں اول خان سے ذکر کیا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہمیں 3 لاشیں عبور کرنے کے بعد اس تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ سلطان شاہ نے اسے نہ چھیڑا ہوتا تو شاید مسلح محافظ درمیان میں نہ آتے اور ہم براہ راست اسے گھیر لیتے۔ وہ بہت سخت جان ہے، صحت مندی کی حالت میں ہرگز زبان نہ کھولتا۔ زخمی گھٹنے کے بل وہ کافی دیر تک لٹکا رہا تھا۔ ایسے مجرموں سے کچھ گلوانے میں بڑا وقت صرف ہوتا ہے۔ 3rd ڈگری کا اصول ہی یہی ہوتا ہے، اپنے حریف کے بدن میں کوئی کمزوری تلاش یا پیدا کرو اور پھر مسلسل اسی کو نشانہ بناتے چلے جاؤ۔ بلبلا کر وہ خود ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ میرے لیے خیال فرحت انگیز تھا کہ میں نے اپنے فلیٹ کا طواف کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے کر ان کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ فلیٹ کے چکر کاٹنے کی پاداش میں وہ 3 آدمیوں سے محروم ہو چکے تھے۔ ان کے لیے چوتھی لاش کا تحفہ بھی تقریباً تیار تھا۔ اس بھاگ دوڑ کا نچوڑ یہ تھا کہ کام آگے بڑھانے کے لیے کھٹومل راجوانی کا مشکوک نام ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ اول خان نے مجھے فلیٹ کے نیچے چھوڑا تو میری رسٹ واچ رات کے 10 بجا رہی تھی۔ مجھے اتار کر وہ وہیں سے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اول خان کسی زمانے میں فوج کا کوئی عہدے دار رہا ہو تو اور بات ہے، ورنہ ان دنوں وہ اس ادارے کا رکن نہ ہونے کے باوجود سخت ترین فوجی نظم و ضبط کا پابند نظر آتا تھا۔ اسی نے کسی موقع پر یہ بتایا تھا کہ STF کی تشکیل اور تربیت خالص عسکری بنیادوں پر کی گئی تھی۔ وہ ہر شخص کے سوچنے کے لیے حدود متعین تھی، لیکن اوپر سے آئے ہوئے حکم کی تعمیل ہر ماتحت کے لیے ناگزیر تھی۔ اول خان اسٹیشن 4 کا کمانڈر تھا۔ اس حیثیت میں وہ چاہتا تو اپنا سارا وقت دفتر میں پاؤں پسار کر گزار سکتا تھا اور بھاگ دوڑ کے سارے کام اپنے ماتحتوں سے لے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی فرض شناسی کی انتہا تھی کہ ہر اہم موقع پر وہ مجھے خود میدان عمل میں نظر آیا تھا۔ مجموعی طور پر وہ اپنے ہر ماتحت سے زیادہ کام کر کے ان کے لیے ایک مثال بنا رہتا تھا۔ اس چکر میں شاید اس کی گھریلو زندگی بھی پس پشت چلی گئی تھی۔ گھر کی ضروریات پر وہ اپنے دفتری فرائض کو فوقیت دیتا تھا۔ اس کے نزدیک کسی ایک گھر کے مقابلے میں وطن کی سلامتی زیادہ اہم اور مقدس تھی۔ اگلی صبح کے اخبار میں 4 لاشوں کے بارے میں سہ کالمی خبر پہلے صفحے پر خاصی نمایاں تھی۔ گلشن اقبال کے بنگلے کے بارے میں تفصیلات خاصی سنسنیخیز تھیں۔ رات گئے ولی جان نے ہوش میں آنے کے بعد شنکر رائے کا بستر خالی پایا تو بری طرح بوکھلا گیا۔ اسے مسحری چھوڑنے اور باہر نکلنے کی کوشش کی تو گھٹنے کی معذوری آڑے آ گئی۔ اس وقت تک بجلی بحال ہو چکی تھی، مگر ہر طرف رات کے گہرے سناٹے کا راج تھا۔ ولی جان نے دہشت زدہ ہو کر پوری قوت سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہوئے تو مکان کے احاطے میں 3 لاشیں دریافت ہوئی۔ ولی جان اندر نڈھال پڑا ہوا تھا۔ ولی جان نے پولیس کو شنکر رائے کی گمشدگی کے بارے میں بتایا، جبکہ اس سے کافی دیر پہلے یونیورسٹی سے کچھ فاصلے پر شنکر رائے کی لاش مل چکی تھی۔ ابتدا میں اسے نامعلوم مقتول قرار دیا گیا تھا، لیکن ٹوٹے ہوئے گھٹنے کی بنا پر اس کی شناخت کے مراحل تیزی سے طے ہوتے چلے گئے۔ شنکر نے اسٹیشن 4 پر اول خان کی آواز پہچان کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے پرانے دشمنوں کی قید میں چلا گیا تھا، لیکن ولی جان سے صرف میرا سامنا ہوا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں کوئی بھی انکشاف نہیں کر سکا تھا اور پولیس کو تفتیش کے آغاز کے لیے کوئی نقطہ نہیں مل سکا تھا۔ 4 لاشوں کا معاملہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ان سے متعلقہ متعدد چھوٹی بڑی خبروں میں کہیں بھی بیم گن کا نشانہ بننے والے 2 مقتولین کے غیر معمولی زخموں کا ذکر نہیں تھا۔ اس کے 2 ہی اسباب ہو سکتے تھے: خبر دیر میں ملنے کی وجہ سے اخباری نمائندے واردات کی پوری جزویات کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، یا پھر متعلقہ پولیس اہلکار اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ان غیر معمولی زخموں پر توجہ نہیں دے سکے تھے۔ وہ کراچی کے امن و امان میں بگاڑ کا دور تھا۔ شہر میں آئے دن 2-4 افراد نامعلوم دہشت گردوں کی بربریت کا نشانہ بنتے رہتے تھے
और हर वारदात के बारे में सरेआम ये कहा जाने लगा था कि दहशत गर्द जदीद तरीन आतिशी हथियारों से लैस होकर अपने हदफ पर हमला आवर होते हैं। मेरा ख्याल था कि इन अफवाहों की लहर में अगर किसी मरहले पर लेजर गन वगैरह का नाम भी आ जाता तो इससे किसी तफ्तीशी अफसर को कोई खास नजरिया कायम करने में मदद नहीं मिल सकती थी। यह फर्ज करके रवायती अंदाज में सबर कर लिया जाता कि दहशत गर्दों को बड़े और छोटे बोर के जदीद हथियारों और दस्ती रॉकेट लॉन्चरों के साथ लेजर से चलने वाले मोहलक हथियारों तक रसाई हासिल हो चुकी है। यह खतरनाक रवैया इज्तिमाई तौर पर शहरियों के हौसले पस्त करने के साथ दहशत गर्दों को खुली छूट देने के मुतरादिफ था। इस रो में जो भी कोई खुदकार हथियार लेकर किसी को ललकार बैठता था पूरी आज़ादी और बेफिक्री के साथ अपनी मन मानी कर गुजरता था। आपके मूड के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलता। गजाला ने मेज पर नाश्ता लगातू हंस कर कहा, यहाँ से सिर्फ जायजा लेने के लिए निकली और एक हंगामा खड़ा कराए। हमारे अपने तहफ्फुज़ के लिए ये पेशकदमी जरूरी थी। मेरे जवाब से पहले सुल्तान शाह ने अपनी बात कह दी। अगर वो हमारे ऊपर हाथ डालने का कोई प्रोग्राम बना रहे थे तो अब इन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसी लड़ाई में पहल को हमेशा बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होती है। वीरा का मुंह बन गया। घर में बैठकर बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। सब लोग तुम्हारी तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाएं तो हशरातुल अर्ज की तरह फैले हुए हमारे दुश्मन हमें घड़ी की चौथाई में रोंद डाले। मैं घर में अपनी मर्जी से नहीं बैठा, बिठाया गया हूं। सुल्तान शाह अकड़ कर बोला। हाँ, इसी तरह जैसे कंवारी लड़कियों को मायों बिठाया जाता है। वीरा ने हाजिर जवाबी का मुजाहरा किया। अब तुम अपने बड़ों से पूछे बगैर घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकोगे। रात वाली मुहिम के लिए बुनियादी काम सुल्तान शाह ही ने किया था। मैंने वीरा को समझाना चाहा। इससे शंकर और वली जान को जख्मी ना किया होता तो हमारी नजरों से ओझल रहती और मुझे इनका ख्याल तक ना आता। इसका जख्मी करने से इनमें कौन से सुरखाब के पर लग गए। वीरा नाराज हो गई। जख्मी ना हुए होते तो अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे होते। हम इन पर शक को शुबा नहीं कर सकते थे। जख्मी होते ही इन पर 3 मुसल्ला गार्ड से मामूर कर दिए गए और अव्वल खान की थोड़ी बहुत तवज्जो उधर मफजूल होगी। मुझे खुशी है कि हमारी रात की भाग दौड़ रायगा नहीं गई। शंकर तुम्हारे हाथ जरूर आ गया मगर उसके लिए तुम्हें 3 आदमियों का खून बहाना पड़ा। हो सकता है कि वो बेगुनाह रहे हों। इनका दाव चल जाता तो वो भी वहीं तुम्हारा तिया पांचा कर देते। शायद तुमने ये छोटी सी खबर नहीं पढ़ी। गजाला ने अखबार मोड़कर एक खबर वीरा के सामने कर दी। इन तीनों में से कोई शरीफ आदमी नहीं था। 2 अंदरूनी सिंध की पुलिस को मतलूब मफरूर मुलजिम है जो कत्ल की वारदातों में मुलव्वस बताए गए हैं। तीसरा एक बदनाम मंशियात फरोश था। वीरा नागवारी से खबर पढ़कर अखबार एक तरफ डाल दिया और बोली, मुझे मालूम है कि कभी कभी तुम तीनों मेरे खिलाफ गठजोड़ कर लेते हो। घुटने मुड़ते हैं तो हमेशा पेट ही की तरफ जाते हैं। बिल्कुल गलत है। घुटनों से सिर्फ पिंडली मुड़ती है। शंकर और वली जान की एक एक पिंडली दोनों तरफ मुड़ने लगी थी। तुम ये कह सकती हो कि मुड़ती हैं तो राने पेट की तरफ जाती हैं। सुल्तान शाह ने तस्दीक की। नाश्ते के दौरान में भी वो नोक झोंक जारी रही। मुझे इस तकरार में दखल अंदाज होने की जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि इस गुफ्तगू में तलखी का कोई शायबा तक नहीं था। वीरा हम लोगों के साथ रहकर इस माहौल की आदी हो गई थी। लंदन और न्यूयॉर्क के मसरूफ शब रोज में मेरा साथ मुयस्सर होने के बावजूद वो बाकी लोगों की कमी महसूस करती रही थी। कराची आने के बाद शायद वो सबसे उलझ कर इसी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं ड्राइंग रूम में जा बैठा। मेरा इरादा खट्टूमल को छेड़ने का था। मेरे पास शंकर का दिया हुआ पता और फोन नंबर मौजूद था। मुझे तवक्का थी कि अव्वल खान मुझसे मशवरा किए बगैर खट्टूमल से बराह रास्त छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस इसकी सरगर्मियों की निगरानी वगैरह पर इक्तिफा करेगा। ये सोचकर मैंने उससे फोन पर बात करने का फैसला कर लिया। नंबर मिलने पर फोन खट्टूमल के किसी मुलाजिम ने उठाया था। मैंने खट्टूमल से बात करने की ख्वाहिश की तो उसने अपने मालिक की मौजूदगी या गैर हाजिरी के बारे में कुछ बताए बगैर मेरा नाम जानना चाहा। मुझे अंदाजा था कि मेरा नाम जाने बगैर वो खट्टूमल तक पैगाम नहीं पहुंचाएगा। मैंने गैर इरादी तौर पर उसे अपना नाम शंकर बता दिया। नाम बता देने के बाद मुझे तवक्का थी कि वह चौंकेगा, लेकिन उसने किसी रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किए बगैर मुझे इंतजार करने का मशवरा दिया और गायब हो गया। कतरे तवील इंतजार के बाद लाइन पर खटपट हुई। फिर मेरे कानों में नर्म और शफीक सी आवाज गूंज उठी। जी बाबा, मैं खट्टूमल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? खट्टूमल, मैं शंकर बोल रहा हूँ, शंकर राय। मैंने उसे चौंकाने के लिए अपने झूठ का तसलसल बरकरार रखा। मुझे यकीन था कि उसे रात ही को अपने आदमियों के कत्ल की खबर मिल गई होगी। बराह रास्त खबर ना भी मिली होती तो अखबार के जरिए उसे वाकयात से बाखबर हो जाना चाहिए था। उसका खास आदमी शंकर राय पिछली रात का आखिरी मकतूल था। मुझे यकीन था कि मेरी जुबान से उसका नाम सुनकर खट्टूमल घबरा जाएगा या फिर उसे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उसकी आवाज़ हैरतनाक तौर पर नर्म और पुरस्कून रही। वो कह रहा था, बाबा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, जरा कुछ और तारुफ करा दो, शायद मुझे याद आ जाए। नाम शंकर राय, मुलाजमत महकमा दाखिला, 17वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम हूँ।
मैंने भी उसी की तरह पुरस्कून रहते हुए रुक रुक कर कहा, नहीं याद आता। उसकी आवाज मुआजरत खाना हो गई। सुबह से शाम तक 50 आदमियों से मेल मुलाकात होती है, किसी किसी का नाम याद से निकल जाता है। हुक्म करो, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरी तरफ से वाज़ेह तरीन इशारों के बावजूद खट्टूमल का रवैया उलझन में डालने वाला था। मैंने तलखी से कहा, मालूम होता है कि तुमने आज का अखबार नहीं देखा। देखा है साईं, बिल्कुल देखा है। दूसरी तरफ से बरजस्ता आवाज आई। फिर उसे चौंक कर कहा, अब समझा। अखबार में होम डिपार्टमेंट के 17 ग्रेड वाले किसी शंकर राय के खून की खबर छपी है। तुम्हारा यह मतलब तो नहीं कि वो खबर गलत है और तुम जिंदा हो? अगर मैं ये कहूं तो तुम इस पर एतबार कर लोगे? मैंने बना कर पूछा। फिर मैं मशवरा दूंगा कि तुम सीधे अब्दुल सत्तार एदी साहब के पास चले जाओ। तुम मरे नहीं हो तो जख्मी जरूर होगे। एदी साहब अच्छा आदमी है, तुम्हें अपनी गाड़ी में घर भिजवा देगा। वो बहुत चालाक और मकार शख्स था। शायद उसने अपने मुलाजिम से मेरा मफरूजा नाम सुनते ही फोन पर किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया था और शुरू ही से मुझसे अपने नावाकफियत का इजहार करता रहा। वो एक गंदा खेल खेल रहा था। पिछली रात उसके 4 मोहरे एक साथ पिट गए थे। वो इनसे अपनी मुकम्मल लातअल्लुकी का इजहार करके किसी भी मुतवक्का उलझन से अपने दामन बचाने की कोशिश कर रहा था। खट्टूमल, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। शंकर राय से इस तरह लातअल्लुकी जता कर भी तुम अपनी गर्दन नहीं बचा सकोगे। उसे मरवाने वाले तुम ही हो। अब तुम खुलकर बोले हो। वो उसी लेवल एजम बोला, ये बताओ कि तुम शंकर के अब्बे लगते हो या दादे? अगर तुम सीधी तरह बात नहीं करोगे तो तुम्हारा अंजाम इन चारों से खराब हो सकता है। धमकियां मत दो, मैं दंगे फसाद वाला आदमी नहीं हूँ, सीधा और खरा बनिया हूँ। ये बोलो कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। बात ढंग की हुई तो मैं मान लूंगा, वरना मेरा वक्त खोटा मत करो। फिर तुम तैयार रहो, तुमसे मुलाकात थी पर कुछ ढंग की बातें होगी। फिलहाल वलीजान को छोड़ दिया गया था। उसे पता चलेगा कि तुम अपने मरने वाले साथियों से इस तरह नजरें फेर लेते हो तो वो खुद ही तुम्हारी गर्दन पर फंदा फिट करवा देगा। तुम्हारे ऊपर 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये सोचो कि उससे तुमको क्या मिलेगा। क्या तुम कोई सरकारी आदमी हो? बात आगे बढ़ने लगी। मैं ऐसी सरकार पर लानत भेजता हूं जिसके नाक के नीचे तुम जैसे कीड़े पूरी आजादी से अपना खेल खेलते रहते हैं और सरकार को कानों कान खबर नहीं होती। फिर तुम कौन हो? शंकर से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? उसने पहली बार ढंग का एक सवाल किया। औरत है। मदन मोहन की एक पार्टी में वो मेरी गर्लफ्रेंड से मिला था और फिर से ले उड़ा। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि वापस मेरे पास आने पर आमादा नहीं थी। अपनी कोई औरत को पाने के लिए तुमने शंकर को मार दिया। उसकी आवाज मुतासफाना होगी। क्या अब वो तुम्हें मिल जाएगी? माया, धरती और नारी हर फसाद की जड़ होती है। मुझे नहीं मालूम था कि उसने किसी पराई हंडी पर मुंह मारा है, वरना मैं खुद उसे समझा देता। मैंने उसकी बात काट दी। औरत गई। मैंने उसे छीनने वाले को रुखसत कर दिया। उसने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था और कहा था कि तुम उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मुंह मांगी रकम दे सकते हो। उसने सच कहा था। असल बात यह है कि माया और धन मर्द जात के हाथ का मैल होता है, इसी तरह नारी मर्द के मन का मैल होती है। मिल गई तो बरत लिया, फिसल कर हाथ से निकल गई तो भूल गया। तुमने शंकर से अपनी औरत का बदला ले लिया है तो मुझे फोन क्यों किया है? मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए की बड़ी रकम की जरूरत है। मैंने मुतालबा कर दिया, मगर मैं तुम्हें रकम क्यों देने लगा? वो शुरू ही से गुस्से में आए बगैर नहायत सब्र तहम्मुल से बात कर रहा था। तुमने शंकर पर हाथ ना उठाया होता तो बात बढ़ भी सकती थी। रकम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पीछे लग जाऊंगा। तुमने देख ही लिया है कि मैं कैसी भीड़ में से उसे निकाल कर ले गया था। मैंने उसे डराने की कोशिश की। तुम्हें बता चुका हूं कि मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं हूं। फिर भी तुम जबरदस्ती मुझसे एक कोड़ी नहीं ले सकते। मुझे बस एक बात बता दो, शंकर से तुम्हारा औरत का झगड़ा था तो तुमने ये क्यों कहा कि तुमने वलीजान को छोड़ दिया है और वही मेरी गर्दन पर कोई फंदा लगाएगा? तुमसे कुछ मिलने की उम्मीद में मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझसे रकम की बात करो। मारने से पहले तुमने शंकर का एक घुटना क्यों तोड़ डाला? उसने पूछा। वो पहले ही से टूटा हुआ था, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इसे अपना राब्ता बरकरार रखने की उम्मीद में मैंने अपनी हिकमत अमली यकसर तब्दील कर दी थी। मैं मानता हूं कि वो पहले से माजूर था। क्या तुमने उसे माजूर नहीं किया था? वो इत्मीनान करना चाह रहा था कि मेरा ताल्लुक शंकर के किसी दरीना हरीफ से तो नहीं था। जो कुछ हुआ वो रकाबत के जज्बे के तहत हो गया। मुझे उसको 2 किस्तों में मारने की क्या जरूरत थी? वो पहले हाथ आ जाता तो मैं माजूर करने के बजाय एक ही बार में उसका झटका कर देता। तुम्हें उसे मारना ही था तो तुमको उससे पूछगछ की क्या जरूरत पड़ गई थी? बाहर ले जाकर मैंने उसे मारा, पीटा और अपने दिल की भड़ास निकालने के बाद मार दिया। मुझे उससे पूछगछ करने की कोई हाजत नहीं थी। फिर तुम्हें मेरा फोन नंबर, नाम और वलीजान का नाम कैसे मालूम हुआ? खट्टूमल ने सवाल किया। यह सब वही बके जा रहा था। बहुत डरपोक आदमी था। पहले उसने मुझे वलीजान से सौदा करने के लिए कहा था। मैं राजी नहीं हुआ तो उसने तुम्हारा नाम लिया था। तुमने सही चौखट पर दस्तक दी है।
उसकी आवाज में हलावत ओद कर आई। मुझे अपना नाम पता बता दो, मैं तुम्हें मुफ्त में कोई रकम नहीं दे सकता। मेरा कोई आदमी तुमसे मिलकर काम लेगा और इसका मुआवजा देगा। जल्दी तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इस बार मैं हंस से बगैर नहीं रह सका खट्टूमल जी। मैं अकल से बिल्कुल ही चौपट नहीं हूं जो तुम्हें अपना नाम पता दे दूं ताकि तुम्हारा कोई आदमी आराम से इन चारों के बदले मेरी जान ले ले। जो कहना है अभी और इसी वक्त फोन पर बता दो, वरना मुझसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बात पर शुबा करके तुमने उसकी बात अधूरी रहेगी। सीएसडी के बुजुर्ग की आवाज से जाहिर हो रहा था कि गुफ्तगू में किसी किस्म की मुदाखलत की कोशिश की गई थी। फौरन ही गजाला ख्वाबगाह से दौड़ी हुई आई और बोली, सीएसडी का सुर्ख बल्ब जलने के साथ बुजुर्ग बोल रहा है, इसका क्या करूं? मैंने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। जाओ। वो दोनों चीजें नॉर्मल हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं खुद ही खट्टूमल से गुफ्तगू को तूल दे रहा था, लेकिन सीएसडी की हरकत में आने से यह साबित हो गया था कि वो खुद भी मुझे बातों में उलझा कर किसी दूसरे फोन पर एक्सचेंज से मेरा नंबर मालूम करने की कोशिश कर रहा था। जो ही उधर से मुदाखलत हुई, मेरा फोन बंद हो गया। तुम खट्टूमल से बात करके क्या नतीजा हासिल करना चाह रहे थे? वीरा ने मुझसे पूछा। हरकत में बरकत है, मैंने आंखें मूंद कर जवाब दिया। उसके ज़हन पर हर वक्त ये खौफ सवार रहेगा कि शंकर का कातिल उसके बारे में खासा बाखबर है। कहीं ना कहीं तो हमारा और उसका आमना सामना होना ही है। इस वक्त की बातें मुलाकात पर मेरे काम आएंगी। हर वक्त अपने फायदे के पहलू पर नजर मत रखा करो। ये खतरा क्यों फरामोश कर रहे हो कि तुमने उसे अपने एक दुश्मन की मौजूदगी से आगाह कर दिया है और अब वो हर वक्त चौकन्ना रहेगा। इसी आसाबी दबाव में उससे गलतियां सरजद होंगी जो मेरे लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ऐसी गलतियों का इर्तिकाब तुम कर बैठते तो क्या होता? वीरा फिर बहस के मूड में थी। कुछ भी बन सकता है। तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो इसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। तुम्हें ये कीमती मशवरे देने ही थे तो फोन करने से पहले दिए होते। अब चुपचाप बैठी रहो। तुम तो यहाँ आकर फरौने बेस सामान बन गए हो। पता नहीं चलता कि कब क्या करने वाले हो। नाश्ते की मेज से उठे और किसी से कुछ कहे सुने बगैर फोन घुमा दिया। वो तनक कर बोली, सीधी बैठो। इस वक्त फिर तुम्हारे शाने का तिल नजर आ रहा है। भैंगे डग की तरह कहीं मुझ पर कोई इल्जाम न लगा देना। गजाला मेरी जान को आ जाएगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमको गजाला की कितनी फिक्र रहती है। मुझे बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ। जिस दिन उसे तुम्हारी हरकतों का इल्म हो गया तो अपनी सारी नरम गुफ्तारी को बालाए ताक रखकर तुम्हारे हक में खूंखार हो जाएगी। ऐसी लड़कियां एतमाद का फरेब बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी इन मंतकों को एहतियात से अपने पास महफूज रखो। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। दरमियान में तुम्हारी वकालत की कोई जरूरत नहीं। उसे टालने के लिए मैंने अखबार उठा लिया। हकीकत ये थी कि मारे जाने वाले तीनों मुहाफिजों के माजी के बारे में छपने वाली खबर मेरी निगाहों से चूक गई थी। इनकी खराब शोहरत के बारे में मेज पर बात हो ही चुकी थी। इनके नामों से मालूम हुआ कि बज़ाहिर वो तीनों मुसलमान ही थे, यानी इस वाक़े को हिंदू मुस्लिम मुनाफरत की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता था। 12 बजे अव्वल खान नाम मौजूद हुआ। अपने मामूल के मुताबिक उसने आते ही चाय की फरमाइश की। आज हर तरफ से खबरें ही खबरें चली आ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। सलाम दुआ के बाद अव्वल खान ने बात छेड़ी। कोई बुरी खबर हो तो वो पहले सुना दो ताकि बाद में मूड खराब ना हो। मैंने मशवरा दिया। वो भी कई हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि बीम गन का निशाना बनने वालों की मौत के सबब को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी जदीद आतिशी हथियार के इस्तेमाल का नतीजा करार देकर दबा दिया गया है। मगर अस्पताल से ये इतला किसी तरह बाहर आ गई है कि 2 लाशें जिस्मों में बारीक सुराखों के साथ मिली थी। पाकिस्तान में बीम गन का तस्वुर अजनबी है। अगर कागजात पर रिपोर्ट दुरुस्त है तो हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वक्त के साथ ये खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मेरी दुआ है कि ऐसा ही हो। वक्त के फर्क की वजह से मैं कल या परसों का तयन करने से कासिर हूँ। बहरहाल ये समझ लो कि न्यूयॉर्क में जैनी नामी किसी लड़की ने तुम्हारी और वीरा की बहुत सी सरगर्मियों के बारे में पुलिस चीफ को अपना रजाकाराना बयान देकर सनसनी फैला दी है। उसका कहना है कि अमेरिका में कुछ तो खून करने के बाद तुम उसे धोखा देकर अमेरिका से फरार हो चुके हो। उसकी तरफ से मुझे शुबा था कि वो ऐसा ही करेगी। मैंने अपने दिल में जैनी के लिए हमदर्दी की एक लहर महसूस करते हुए एतराफ़ किया। हमने उसके एतमाद को धोखा देकर बहुत बेरहमी से उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। उसने अपने तौर पर बाज कड़ियाँ यकजा भी कर ली थी। तो अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए पुलिस के पास गई है। वो लोग अब लकीर पीटने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। नताइज अखज़ करने में इतनी उजरत से काम ना लो। इन खबरों की तीसरी कड़ी यह है कि दफ्तर खारजा में आला तरीन सतह पर अमरीकी सफीर को तलब करके पाकिस्तान ने गैप के बारे में शदीद तरीन एहतजाज किया है। सुना है कि अमरीकी सफीर को इस नापाक समझौते के असल कागजात दिखाकर जवाब तलब किया गया था। इसके असरार के बावजूद असल कागजों की बजाय उनकी नकल उसके हवाले की गई है। यह बड़ी बात है। मुझे खुशी है कि हम आज भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार मलकियत की हैसियत से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कुछ कड़वे कसीले सवालात करने की हिम्मत रखते हैं। इन सवालों के 2 जवाब भी आ चुके हैं। तुम्हें अमेरिका का कौमी मुजरिम करार देकर पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है।
کہ تمہیں جلد از جلد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا جائے تاکہ تم پر وہاں کی عدالتوں میں وہیں کے قانون کے مطابق مقدمات چلائے جا سکیں۔ اسے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ میں نے مستربانہ تجسس کے ساتھ سوال کیا۔ گیپ کے بارے میں ہر الزام کو فوری طور پر مسترد کر کے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 5 اصل کاغذ امریکہ بھیجے جائیں تاکہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ماہرین ان کی اصلیت یا کسی بین الاقوامی جعلسازی کا تعین کر سکیں۔ اس کے بعد ہی گیپ کے بارے میں کوئی بات ہو سکے گی۔ پاکستان اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی جگہ میں پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ سرکاری موقف سامنے آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ گیپ کے اصل کاغذات نہیں دیے جائیں گے۔ وہ ایک بار ان کے قبضے میں چلے گئے تو انہیں تلف کر کے جعلی کاغذ لوٹا دیے جائیں گے، پھر تو یہ معاملہ یہیں ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ یہی کرینہ قیاس نظر آ رہا ہے۔ ہم اصل کاغذ ان کے حوالے نہیں کریں گے، وہ الزام تسلیم نہیں کریں گے۔ کیا یہ معاملہ کسی بین الاقوامی فارم پر نہیں جا سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پیمانے پر امریکہ کے ساتھ محاذ رائے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے خلاف انتقامی پابندیوں کا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔